I'm Nidhi Kumar, and we're extremely delighted to bring to you the Eat Right India initiative of FSSAI adopted by Herbalife Nutrition. Herbalife is all committed to make the state healthy and safe in their series of the initiative. Also acknowledging our broadcasting partners, the Mitro app and Daily Hunt. And together we'd like to extend a fervent welcome to all of you on this session, Innovation as an Accelerator from Startup to Scale. And joining me today is Shubham Maheshwari, who founded Being Chef 7 years ago and has since led the growth of the company. He, through Being Chef, strives to make people healthy through their daily food intake. And he's also been awarded the Youth Changemaker Award in 2010. And he was also selected in Forbes 30 Under 30 for Asia in 2021. Being Chef is a startup operational in the F&B space and provides an exhaustive solution to daily food requirements in a healthy and economical manner by a flexible mode of subscription and on-demand nutritional meals. It's been operational in Gurgaon since 2014, and it is the first mover in the DIY meal kit space in India. It also received the Transformation of the Year award at Amazon and in the presence of Jeff Bezos and many other distinguished personalities. It has also been recognized by Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India. It has shown serious interest in building a business. Till date, it has served millions of meals and it is net profitable. So, Mr. Shubham, I'd like to extend a very warm welcome to you. Tell us about Being Chef. Hi, good afternoon, Nidhi. Thank you for such kind words. So in Being Chef, we are trying to kind of, make nutrition convenient for masses. So what we analyzed when we were trying to build this company was that 80% of the population in India is protein deficient. In fact, 75% is vitamin deficient. And, totally in sync with what WHO and FSSAI are trying to do in India in terms of controlling the trans fatty acids and TFAs to a level. Like initially, if you remember, like I remember in 2011, the limit was around 10% for TFA. In 2015, it was brought down to 5%. Now, I think the government has already given the deadline for 3% last year and 2% for 2022. So in sync with that, Being Chef wants to kind of make your life healthy and include nutrition in your lifestyle without asking you for any premium. So in India, primarily health has always been sold as luxury, and we want to change that perception and make it accessible to masses. We totally believe that nutrition is your birthright and you should have it. I mean, so primarily we started building company on those lines, and we developed a couple of products. One of the product was 5-minute recipe kit, using which anyone can cook anything within 5 minutes. So it's so simple that even an 8-year-old kid can cook using it. And so we're trying to solve the problem of cooking and removing all of the hassles related to cooking. Even if people say that okay, the females who are kind of homemakers and who are housewives, they have enough time, why would they want to kind of use meal kit? But what we say is, if we are not asking you for any premium and giving you everything pre-chopped, pre-processed, and you can do it in 5 minutes, they would rather invest their time on their own health and on their own well-being, instead of doing those processes and spending time on all of those activities which are redundant in terms of cooking. So we want to kind of change the way India consume their daily meal, and like brand like Amul, which has kind of impacted our lives, we also want to impact the lives of masses in their daily meal intake. Absolutely. तो मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगी कुछ रेसिपीज ऐसी जो खुद से 5 मिनट में बना ली जाए, पर उससे पहले since we're talking of innovation as an accelerator, कब ये आइडिया आया आपको कि बीइंग शेफ बनाना है और इसको आपने किस तरह आगे लेके गए, इसके बारे में आप जरूर बताएं. What challenges did you face? Sure. So basically मैंने 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करा मेरा. मैं NIT जयपुर से मैंने पढ़ाई किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था. एंड देन I was lucky enough to get in a company in a US based consulting firm. Day zero ही placement हो गया था. तो जब मैं कंसल्टिंग में गया, I was born brought up in Jaipur, throughout जयपुर में पढ़ाई करी और हमेशा से एक कंफर्ट जोन में रहे. एंड बीइंग अ मारवाड़ी, फूड इज समथिंग जो कि हम लोग बहुत चेरिश करते हैं इन जनरल हमारी लाइफस्टाइल में. मॉम्स के हाथ का खाना हमें बहुत पसंद है. तो हम जब कंफर्ट जोन से बाहर निकले, पहली बार गुड़गांव शिफ्ट हुआ, इंडिया ऑफिस उनका गुड़गांव में था, तो वहां पे रियलाइज करा कि लाइफ सॉर्टेड है, पैकेज सॉर्टेड है, सब कुछ सही है, बट डेली मील सॉर्टेड नहीं है. एंड खाना हम 2-3 तरीके से ही खा सकते हैं. या तो हम खुद कुक कर ले या कोई और हमारे लिए कुक कर ले, विच कैन बी अ कुक और हमारी मॉम, चाहे कोई भी समवन एल्स कुकिंग फॉर अस, राइट. एंड थर्ड वे इज कि हम कहीं से टिफिन लगवा लें.
उसके अलावा तो देयर इज नो अदर मोड जिसके थ्रू हम डेली खाना खा सके। और इन तीनों ही तरीके में न्यूट्रिशन की तो कई बात होती ही नहीं है। हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं हमारे खाने को लेके, हम भी यही सेम क्रिप करते थे कि कुक इरेगुलर है, टाइम पे नहीं आते, माइक्रोवेव करो खाना, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, रिपीटेटिव मेन्यू है। ऑर्डर करो। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर तो उस टाइम तो था ही नहीं, 2013 आई एम टॉकिंग अबाउट जोमैटो। और आप डेली ऑर्डर नहीं कर सकते ना, तो डेली भी ऑर्डरिंग इज काइंड ऑफ एन अनहेल्दी ऑप्शन। सो हमने एक दिन सोचा यार कौन सा रॉकेट साइंस है, किचन में चलते हैं एंड खाना खुद ही बना लेंगे। इंजीनियरिंग क्लियर कर लिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। एंड वी वेंट टू किचन एंड वी रियलाइज कि जो एक वीडियो आता है यूट्यूब पे इज जस्ट 5 to 6 7 मिनट्स वीडियो, सब कुछ कटा कटा है, नपा नपाए होता है, एक प्रॉपर शेफ आता है, सूटेड बूटेड, आया, मिक्स करो और खाना बन गया। बट व्हेन यू टू डू इट ऑन योर ओन, यू हैव टू डू द एंटायर प्रोसेसिंग, प्री चॉपिंग, वॉशिंग, सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम लोगों ने 30-35 मिनट स्पेंड करा और हमने बहुत ही गंदा खाना बनाया, जो कि शायद कोई और बना के लाता तो हम खा भी नहीं पाते। बट वो जो फीलिंग होती है ना, आप अपने हाथ से कुछ भी क्रिएट करें, वो फीलिंग बहुत अनमैचेबल होती है। एंड वी रियली एंजॉयड द फूड एंड दैट्स हाउ दिस आइडिया केम कि क्या हम ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट बनाए जिसके थ्रू हम यही फीलिंग लोगों को दें अलोंग विद अ गुड एंड न्यूट्रिशियस मील। तो उस तरह से एक वेग आइडिया से चालू हुआ। फिर मैंने 8 महीने में अपनी जॉब छोड़ी एंड 2014 में वी स्टार्टेड दिस वेंचर। वी आर द फर्स्ट मूवर इन इंडिया। ऐसा कुछ प्रोडक्ट अक्रॉस दी वर्ल्ड कहीं नहीं है जो कि आपको बोले कि आप विद इन 5 मिनट्स आप उसको यूज करके कुकिंग कर सके। 2014 से हमने स्टार्ट करा और हमेशा से हमारा आइडियोलॉजी ये था कि हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करें जिसके थ्रू हम मार्केट में एक ऑटोमेटिक पुल क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट आउट। तो जहां आप पुश करोगे वहां आपको हैवी डिस्काउंटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। बट जब आप पुश पुल के ऊपर एक मॉडल बना रहे हैं तो आप मार्केट की डिमांड को एनालाइज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी डिड 3 लेवल्स ऑफ बीटा वर्जन लॉन्च बिफोर द फाइनल लॉन्च। उसी में हमारे ये सारे मॉडल्स बनते गए कि क्या हम 5 मिनट में कुकिंग को समराइज कर सकते हैं। बिकॉज किसी को खाना बनाने सबसे पहले दिमाग में मैगी नूडल्स आता है, क्योंकि उनका Maggi is दो five मिनट minutes. Yes, हाँ, yes. 2 मिनट का पिच है, 5 मिनट यू आर ओके टू स्पेंड दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम इन किचन। तो फिर वहां से आया कि कैन वी समराइज कुकिंग की, कढ़ाई पनीर से लेके पास्ता से लेके कुछ भी एक्सोटिक वेजिटेबल 5 मिनट में बन सकती है क्या। फिर दूसरा है कि क्या हम उसको इतना सिंप्लीफाई करें कि एक बच्चा भी बना सके एंड इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं हो, तो हमने पूरे कुकिंग को गेमीफाई करा। फिर थर्ड वाज कि हर एक का टेस्ट प्रेफरेंस अलग है, तो क्या हम उसको अकाउंट में ले सकते हैं क्या। तो इन तीनों को कंबाइन करके फिर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा 2014 के अंदर। तो प्योरली लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एफर्ट गया। और जब हम चालू कर रहे थे, आपने बोला कि चैलेंजेस, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किसी को बिलीव ही नहीं था कि ऐसा कुछ बन सकता है। आई मेट लाइक टॉप नॉच शेफ्स ऑफ इंडिया। सब जने बोले कि आप क्या बोल रहे हैं कि जो हम पिछले 15-20 साल से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आप वो एक 8 साल के बच्चे से बनवा देंगे, इट्स टोटली नॉट फिजिबल। एंड वी टुक इट एज अ चैलेंज। सो मेरे को हमेशा एक चीज बहुत इंस्पायर करती थी कि फोर्ड ने असेंबली लाइन स्ट्रक्चर लेकर आए थे। फोर्ड सबसे पहले ऑटोमोबाइल के अंदर पूरा डिस्ट्रप्शन लाए। और आई एम बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई वाज लाइक कि जब वो ला सकते हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग का टास्क माना जाता था एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना कि बहुत टेक्निकल टास्क है, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल स्टेप्स वाइज बना दिया एसओपीस की। एक 10th पास बंदा भी जिसको आपने ट्रेन कर दिया कि ये सब करना है वो कर दे। तो क्या हम कुकिंग में क्यों नहीं कर सकते। हम कुकिंग के अंदर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स लगा के हम क्यों उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो लॉजिकली हमें लगता था कि हो सकता है, बट दुनिया कहती थी कि नहीं हो सकता। बट फाइनली विद ऑल द सपोर्ट वी गॉट, हम 3 महीने के अंदर हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। Absolutely. Can you share a few accomplishments that boosted you in this difficult journey? Lot of accomplishment that happened organically, And so even अभी your तक failures. I mean, you can be honest about it. yeah. So multiple things happened when we started. We decided कि हमें bootstrap करना है. We don't want to raise investment in the initial go because we wanted to understand the entire model. We always wanted to create a company जो legacy छोड़ के जाए। आप रहे ना रहे वो कंपनी का नाम चलते रहे, instead of playing a short term game. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ग्रास रूट पे चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको धंधा बिल्ड करना है रिलायंस टाइप टाटा टाइप, तो आपको ग्रास रूट पे जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे आप कभी उस लेवल पे आप विजन के साथ कुछ बिल्ड नहीं कर सकते। तो हमने बहुत टाइम स्पेंड करा ग्रास रूट पे। आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड, मैं 23 साल का था। तो लोग बाग सीरियसली लेते थे इंडस्ट्री के अंदर, हमें वो सब बहुत इश्यूज फेस करने पड़े इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा अकम्पलिशमेंट ये हुआ कि जब हमने एक ही साल पुराने थे कंपनी के स्टार्ट करे, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें हमें एक दिन में 35,000 लोग खाना खिलाने थे, 35,000 पीपल। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑफ एनसीआर। उससे पहले सिर्फ, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, बट इंडिया की जो टॉप नॉच कंपनीज है फूड की, जो कि बहुत सालों साल से हैं, वही लोग काम करते थे और हर बार कुछ ना कुछ इशू रह जाता था, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो हम लोगों को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली 2015 के अंदर। 2014 वी स्टार्टेड एंड इट वेंट सो वेल। उसके बाद से हम ही करते आ रहे हैं वो चीज हर साल। तो वो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट स्केल वाला चेक हो गया। फिर वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग की जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट, इम्पैक्ट और स्केल का। तो वो फिर हमने 2018 में चेक कर लिया कि हम जब प्रॉफिटेबल हुए कि कैसा यूनिक मॉडल। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए लाइफ के अंदर, बिकॉज हम लोग जो भी करना चाह रहे थे वो थोड़ा सा लीग से डिफरेंट जाके था, क्योंकि सारे स्टार्टअप्स फंड रेस करो, स्केल करो, फंड रेस करो, उस मॉडल पे हम लोग का था कि
spend time, understand the business, create a business and then go out and raise investment and scale. तो काफी अच्छा था. बट जब से फिर उसके बाद तो 2018-19 तो देन वर्ल्ड स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग अस. फिर हमें अमेजोन से अवार्ड मिला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड. फिर फोर्ब्स में वी गॉट लिस्टेड, ओनली कंपनी फ्रॉम द फूड सेक्टर टू बी लिस्टेड इन फोर्ब्स एशिया. फिर मेरे को रिसेंटली अपने स्कूल से बुलाया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. कॉलेज से भी यंग अचीवर अवार्ड मिला विद ऑल द IAS. एंड तो वो सब फिर चीजें आते गई. बट ठीक है, वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी है, मतलब तो ठीक है. बट हाँ, जर्नी काफी एक्साइटिंग है. एब्सोल्युटली. और यहाँ हमने देखा है इस प्रोग्राम में भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने इस तरह के कॉर्पोरेट्स अगर सामने आते हैं तो बहुत मदद करते हैं वो फूड लैंडस्केप को चेंज करने में इंडिया में. Right. तो आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया? क्या खा रहे हैं लोग, क्या सही खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं? आपने ये भी एनालाइज जरूर किया होगा. राइट. सो मेरे को लगता है थोड़ा सैड है इंडिया में, एंड आई फील रियली सैड कि इंडिया में एक तो बहुत ज्यादा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे अगर बेसिक चीजें हम बात करते हैं, ऑयल की बात करें, जैसे FSSAI भी बोलता है कि TFA इसको कम करना है. हम लोग का एक बेसिक कल्चर है कि हम जाते हैं पड़ोस के ठेले में खाना खा लेते हैं, वहां पे वो ऑयल रीयूज करे जा रहे हैं बार बार. वो एक रीयूज्ड ऑयल इतना ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए. जब भी आप इंडिया में देखेंगे मैक्सिमम लोगों को बीपी की परेशानी है. बीपी की परेशानी का मेजर रीजन ये होता है कि अगर आप सैचुरेटेड फैट या TFAs बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपकी वेन्स के आसपास वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. एरिया ऑफ फ्लो कम हो जाएगा ब्लड का, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक, ओबेसिटी, ये सब इश्यूज होते हैं. और इंडिया में देखेंगे तो आप जब हम देखें 80% लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी है, मैक्सिमम लोगों को बीपी की परेशानी है, मैक्सिमम लोगों को हार्ट के कुछ ना कुछ इश्यूज हैं. और आजकल ये क्रॉनिकल डिजीज बहुत यंग एज पे आ गई. तो हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और वेस्टर्न कल्चर से हम इन्फ्लुएंस तो हो गए, पर उसको बैलेंस करने के लिए हम जो फूड है द ओनली मोड जिसके थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं, वहां हम कहीं फोकस नहीं कर रहे. हमें लगता है हेल्थ हमारे लिए कि जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी बन जाएंगे, बट 70% ऑफ द रोल इज बीइंग प्लेड बाय फूड. तो वो एक बहुत लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है इंडिया में, को लगता है. और जहां तक हम बात करें, इसलिए अनसैचुरेटेड फैट के ऊपर हमें मूव करना बहुत जरूरी है. हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं जो कि ऑब्वियसली सैचुरेटेड फैट के साथ है, जिसके अंदर मल्टीपल इश्यूज है. हम कच्ची घनी ऑयल क्यों नहीं यूज करते? तो एक बहुत ज्यादा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमें, आई थिंक, जिसके ऊपर काम करना चाहिए. और जब भी FSSAI और WHO का टारगेट है कि बाय 2023 दे वांट टू मेक द एंटायर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम TFAs, ट्रांस फैटी एसिड्स, और हम लोगों को उसी लाइंस पे काम करके और सब जनों को एज अ मूवमेंट, एज फूड इंडस्ट्री और एज एंटायर गवर्नमेंट, हमको सबको साथ में इसमें आके काम करना पड़ेगा. और ग्रास रूट पे इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि आज आप 2 रुपए जो बचा रहे हैं एक खराब प्रोडक्ट यूज करके, वो कल आपका 10 रुपए का मेडिकल का बिल लेकर आएगा. तो वो एक इन्फॉर्मेशन और वो फ्लो होना बहुत जरूरी है. तो आपने रूरल एरियाज की बात की, गांव गांव में किस तरह प्रचार करना चाहेंगे आप बाद में जब आप और स्केल अप हो जाए, या आप कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएं. तो हम बेसिकली फार्म्स को और ग्रास रूट को कनेक्ट करना चाहेंगे मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ. जैसे अभी हम लोग हमारा मॉडल ही है कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक, वीगन, वेजिटेरियन, हेल्थ बेस्ड, प्लांट बेस्ड, उन सब के ऊपर ही हम लोग सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं. तो हमारा प्रोक्योरमेंट साइकिल भी सब कुछ डायरेक्ट टू फार्म है. हम लोग फार्म से प्रोक्योर करते हैं, सीधा आपके पास अप्लाई कराते हैं. और जैसे ऑयल की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे, जहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हो गई, रिफाइंड ऑयल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे उसका ट्रीटमेंट होता है. हाई टेम्परेचर होते ही वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है. कच्ची घनी कोल्ड टेम्परेचर पे होता है. तो अगर आप जहाँ पे ग्रास रूट से अगर आप चीजें प्रोक्योर करेंगे तो आपको बहुत ऑर्गेनिक और बहुत शुद्ध चीजें मिलेंगी, जिनको आप मासेस तक और Tier 1 सिटीज तक ला सकते हैं. तो एक इकोसिस्टम बनेगा, कनेक्शन बनेगा, वो बहुत बनना बहुत जरूरी है. वो एक बहुत बड़ा गैप लगता है हमें, और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हम सप्लाई चेन को उस तरह से डिस्टर्ब करें कि हम सीधा फार्म टू डोर लेकर आए आपके पास. Absolutely. So, what are the things that you'd like to advise young entrepreneurs to consider before starting up? क्या चीज उन्हें सोचनी चाहिए? फूड में ही नहीं, कोई और चीज में हाँ, भी. किसी भी चीज में. आई थिंक बिफोर स्टार्टिंग, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट यू रीड इन मीडिया. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉट एवर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फ्लोट्स ऑन व्हाट्सएप. 100 कंपनी चालू होती है जिसमें से शायद एक ही सस्टेन कर पाती है, 99 बंद हो जाती है. तो डोंट जस्ट गेट इन्फ्लुएंस कि अच्छा US में इस मॉडल को फंडिंग मिल गया, हम इंडिया में चालू कर लेते हैं. अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो देयर शुड बी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देयर शुड बी अ प्रॉब्लम विच शुड बी बिग इनफ, जो आपकी रातों की नींद खराब कर दे, जिसको लेके आप सुबह शाम सोचते रहो कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. जब तक आप उस प्रॉब्लम से उस डीप लेवल पे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आएंगे, और वो जब डाउन होंगे ना, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. तो वो सस्टेन जब भी कर पाओगे जब आप प्रॉब्लम से इतने डीपली कनेक्टेड हो कि आपको एक लार्जर कॉज आपके दिमाग में चलता रहे कि हाँ, मैं इसके लिए स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं इसके लिए स्टार्टअप कर रहा हूँ. तो वो बहुत जरूरी है. तो बिफोर स्टार्टिंग अप, थिंक टू मच. आपको जितना सोचना है, जो करना है, आप सब सोचो, सारा एनालिसिस करो, प्रॉब्लम, मार्केट, सब कुछ करो बिफोर स्टार्टिंग अप. वंस यू स्टार्ट अप, देन चाहे कुछ भी हो रहा हो, जस्ट बी इन द गेम.
आप रेस्ट करना है रेस्ट करो, आपको मॉडल पिवट करना है आप मॉडल बदलो, आपको जो करना है चेंज करते रहो, बट डोंट लीव द गेम, बिकॉज अगर आप पिच पे खड़े रहोगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी जिसपे आप छक्का मार ही दो. तो यू हैव टू बी इन द गेम फॉर काइंड ऑफ कम आउट ऑफ इट एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एंड अगर आपका स्टार्टअप बंद भी होता है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो इट्स अ जर्नी, और कोई भी चीज फेलियर नहीं होता, हर चीज एक लर्निंग ही है. और आप जितनी आज लर्निंग लेके बैठेंगे वो शायद एक कॉर्पोरेट से बहुत ज्यादा लर्निंग होगी, बिकॉज आप सब चीज मल्टीपल चीजें हैंडल कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रेशर से आप खुद को प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, टीम का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं. सो देयर इज नथिंग टू लूज. But if you are in the game, just be in the game and just think 100 times more getting into the game. That is the advice that I would give to the entrepreneurs. Absolutely, Shubham. Here I want to now ask you and know from you, what's the global benchmark of food standard and practices? What are the things that have sort of made an impact on you globally from the global point of view? So I think people abroad, they have a lot of information, right? If I talk specifically, people consume internet, they consume right content on internet. They don't just go by information floating on WhatsApp or just random information. So they're very much aware about what they're eating. They're very much aware about their body. They want to, and that's why people nowadays from West, they're getting influenced by Indian culture of yoga, Indian culture of health, because at the end of the day they have been through that cycle. They have been through that unhealthy cycle. They've been through the cycle of obesity, and now they understand that health is wealth. If you're not healthy, then there's nothing that you can actually enjoy your wealth, right? So primarily, I think that is a big benchmark that we as Indians should also see from, and get inspired from the West, that the information should be flowed in a proper right channel, and it should reach out to masses. Because at the end of the day, if you're just kind of flowing the information to 1 or 2 or 3, 4, 5% of the top classes, then also it's not helping the entire nation. जैसे कि वैक्सीन की बात करें, अगर आज हम डेवलप नेशंस में वैक्सीन लग गया और जो अंडर डेवलप कंट्रीज में वैक्सीन नहीं लगा, तो नए वेरिएंट आते रहेंगे, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन देख रहे हैं. तो वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना, एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज एवरीवन्स राइट. इट्स एक्चुअली अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वो लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए. वी एज एंटरप्रेन्योर्स आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फ्लोइंग द इंफॉर्मेशन. आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड सेट एज अ बेंचमार्क फ्रॉम द पीपल इन द वेस्ट. Absolutely. Would you like to comment about the nationwide systematic training of regulatory staff for, for digital and smart technologies? I think we are moving on the right track. There are things happening around. There are people talking about all of this. FSSAI का जो movement है, I'm a big fan. हम जहाँ बात कर रहे हैं TFS को इतना लेवल पे 10% से आप लेके अगर आप 2% पे लेकर आ रहे हैं, which is a great achievement. So strict guidelines and all of those things are happening around. We are moving in the right direction, and I think we should just be in this direction with little more energy. We'll be able to set the benchmark for the entire world. So I think Absolutely. yeah. Here, Shubham, I want you to share a few recipes, paneer or something. You said 8 साल का बच्चा भी बना सकता है. Let's have a few recipes from you. So for us, what we do is, आपको जैसे पनीर बनाना है, तो आपको ऑयल से लेके गार्निश तक का सब कुछ कटा कटा. यू डोंट नीड टू इवन हैव अ किचन. आप अभी मेरे ऑफिस के अंदर बैठे हुए, आपको सिर्फ एक इंडक्शन पैन और पैनल चाहिए. हम आपको मील किट में सब कुछ कटा कटाया नपा नपाया देंगे. With oil, everything. एवरीथिंग, ऑयल टू गार्निश एवरीथिंग, नमक तक भी हम आपको देंगे. आपको कहीं ना दिमाग लगाना, ना अपनी किचन से कुछ डालना. आप वहीं आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे विद इन 5 मिनट्स आप कुक कर सकते हैं. तो एक तरह से हम उस प्रोसेस में आपको एजुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. एट द सेम टाइम उसको गेमिफाई कर रहे हैं कि इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, कि अच्छा ABCD करके सो इवन अ किड कैन एंगेज. और आपको पूरा एक अवेयरनेस दिखा रहे हैं कि आप जो खा रहे हैं आपको पता है आप क्या खा रहे हैं. आप कहीं से बना बनाए खाना ऑर्डर करते हैं, उसने क्या क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, वो फ्रेश है नहीं, आपको कुछ नहीं पता. यहाँ पे बिकॉज यू आर मिक्सिंग थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आप गर्म खाना खा रहे हैं. इंडिया में मैक्सिमम लोग जो कुक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब माइक्रोवेव करके खाना खाते हैं. बिकॉज कुक शाम को 5 बजे आएगा, खाना बनाएगा, आप 8 बजे ऑफिस जाएंगे, माइक्रोवेव करेंगे. माइक्रोवेव रेडिएशन आप खाने में डाल रहे हैं, आप उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू किल कर रहे हैं. आयुर्वेद का अगर आप पढ़ेंगे तो खाना बनने के बाद उसकी एक लाइफ होती है, प्राण कहते हैं जैसे. वो खाने का प्राण से 2 से 3 घंटे के बीच का होता है. हम उसको रीहीट कर करके उसको बस, मतलब हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, हम हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं कर. तो वो सब चीज मील किट से बहुत बेसिक लेवल तक सॉल्व हो जाती है. यू एंजॉय योर मील. सो उस तरह से. और इनफैक्ट सबसे मेजर चीज, आप रोटी बनाते हैं, उसमें डो लगाना, आटा लगाना, हम आपको हाफ बेक परांठास देते हैं. तो आपको बस सेकना है, तो आपको वो आटा लगाने वाला पूरा प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा. सो वो जो भी पेन पॉइंट्स है एक यूजर के, वो सब हमने उसमें वी हैव ट्राइड सॉल्विंग. और आपने और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स करे, जैसे पनीर था जो सब चीज फटाफट? इसमें इंडियन, इटालियन, चाइनीज सब कुछ है. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. Great. And what is your vision statement for 2022? So in 2022, we want to scale this entire thing up.
we have been researching a lot. हम लोग पिछले 5-6 साल research करके पूरा model create करे in terms of making it a sustainable based model, combining profit, scale, and impact. Now we want to scale this entire thing up and reach out to as many people as we can, and also kind of do some innovation in the packaging so that through India only we can ship it across the world. So हम लोग उसके ऊपर उन लाइंस पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे एक दुबई में या यूएस में बैठे लोग को हम हमारा मील किट यहाँ से भेज सके. So multiple things that we are working on, and hopefully we'll be able to accomplish all of those things in this year. And on that note, I'd like to thank you, Shubham, for your valuable time and on joining us today on Innovation as an Accelerator. Thank you so much, and more power to you. Lastly, I'd like to thank the Mitro app, who have worked relentlessly to create this one-of-a-kind digital event and brought us all together. And also Daily Hunt, a special shout out to FSSAI, Eat Right Foundation, Herbalife Nutrition, for always supporting us in our endeavors. And let us ensure all of us move forward with the spirit of keep learning, healing, and growing. On that note, many thanks for watching. Namaskar. Thank you so much.